नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और आपको सीधा ले चलते हैं मिजोरम, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है, जहां उन्होंने रेल को बता दी कि हरी झंडी दिखाकर इसका सौगात दी है मिजोरम वासियों को। और आप ये तस्वीरें मिजोरम की देख रहे थे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिजोरम को रेल की सौगात दी है और कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। हरी झंडी दिखाकर उन्होंने यह उद्घाटन किया है और इसके साथ ही पीएम मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। Our government has already started 11 Eklavya residential schools here. Work is going to start 6 more schools. Our Northeast is also becoming a major hub for startups. I am happy that around 4,500 startups and 25 incubators are operating in the region. Young people of Mizoram are actively joining this movement and creating new opportunities for themselves and others. Friends, India is quickly becoming an important hub for global sports. This is also creating a sports economy in the country. Mizoram has a wonderful tradition of sports, producing many champions in football and all other sports. Our sports policies are benefiting Mizoram as well. Under the Khelo India scheme, we are supporting the creation of modern sports infrastructure. Recently, our government has also come out with a national sports policy, Khelo India Khel Niti. This will open new doors of opportunities for the youth of Mizoram. Friends, whether in our country or abroad, it gives me great happiness to play the role of an ambassador of the beautiful culture of the Northeast. Encouraging platforms that showcase the potential of the Northeast is important. A few months ago, I had the opportunity to participate in the Ashtalakshmi festival in Delhi. It showcased the textiles, crafts, GI tag products, and tourism potential of the Northeast. At the Rising Northeast Summit, I encourage investors to tap into the potential of the Northeast. The summit is opening up the path for massive investment and projects. When I talk about being vocal for local, it greatly benefits the artisans and farmers of the Northeast too. Mizoram's bamboo products, organic ginger, turmeric, and bananas are well known. Friends, we are constantly taking steps to boost ease of living and ease of doing business. Recently, next generation GST reforms have been announced. This means lower taxes on many products
making life easier for families. Before 2014, even daily essential like toothpaste, soap and oil were taxed at 27%. Today, only 5% GST is applicable. During Congress rule, medicines, test kits and insurance policies were heavily taxed. That is why healthcare was expensive and insurance was out of reach for ordinary families. But today, all these have become affordable. The new GST rates will also make medicines for serious diseases like cancer more inexpensive. After September 22nd, cement and construction materials will also become cheaper. Many companies that manufacture scooters and cars have already reduced prices. I am sure that the festive season this time will be even more vibrant across the nation. Friends, as part of the reforms, GST on most hotels had been reduced to only 5%. Traveling to various places, staying in hotels, and eating out will become cheaper. This will help more people travel, explore, and enjoy different parts of our country. Tourist hubs like the Northeast will particularly benefit from it. Friends, our economy has seen a growth of 7.8% in the first quarter of 25-26. It means India is the fastest growing major economy in the world. We are also seeing the growth of Make in India and exports. During Operation Sindoor, you all saw how our soldiers taught a lesson to those who sponsored terror. The whole nation was filled with a sense of pride about our armed forces. In this operation, Made in India weapons played a significant role in protecting our country. The growth of our economy and manufacturing sector is very important for our national security. Friends, our government is committed to the welfare of every citizen, every family, and every region. It is through the empowerment of the people that a developed India will be built. In this journey, I am confident that the people of Mizoram will play a very important role. Once again, I extend my heartfelt congratulations to you all and welcome Aizawl to the railway map of India. Today, due to the weather, I could not come to Aizawl, but I'm sure that we will meet very soon. Thank you. Thanks a lot.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ज्ञान भारतम पोर्टल का शुभारंभ किया। ये पोर्टल प्राचीन के डिजिटलीकरण, संरक्षण और उन्हें आम जनता तक सुलभ बनाने के उद्देश्य से एक समर्पित डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की प्राचीन पांडुलिपियां और ग्रंथ हमारे ज्ञान, संस्कृति और परंपराओं की धरोहर है, जिन्हें संरक्षित करना आने वाली पीढ़ियों के लिए आवश्यक है। ज्ञान भारतम पोर्टल ने बता दें कि शोधार्थियों, छात्रों और विद्वानों को अमूल्य संसाधन आसानी से उपलब्ध हो सकेंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और देश भर से जुड़े विद्वान मौजूद रहे। उदाहरण कहां मिलेगा? साथियों, भारत की ज्ञान परंपरा आज तक इतनी समृद्ध है क्योंकि इसकी नींव 4 मुख्य पिलर्स पर आधारित है। पहला, प्रिजर्वेशन, दूसरा, इनोवेशन, तीसरा, एडिशन और चौथा, एडेप्टेशन। साथियों, अगर मैं प्रिजर्वेशन की बात करूं तो आप जानते हैं हमारे यहां सबसे प्राचीन ग्रंथ वेदों को भारतीय संस्कृति का आधार माना गया है। वेद सर्वोपरि है। पहले वेदों को श्रुति के आधार पर अगली पीढ़ी को दिया जाता था और हजारों वर्षों तक वेदों को बिना किसी त्रुटि के, ऑथेंटिसिटी के साथ प्रिजर्व किया गया। भारत का इतिहास सिर्फ सल्तनतों की जीत हार का नहीं है। हमारे यहां रियासतों और राज्यों के भूगोल बदलते रहे, लेकिन हिमालय से हिंद महासागर तक भारत अक्षुण्ण रहा, क्योंकि भारत स्वयं में एक जीवंत प्रवाह है जिसका निर्माण उसके विचारों से, आदर्शों से और मूल्यों से हुआ है। भारत की प्राचीन पांडुलिपियों में, मैन्युस्क्रिप्ट में हमें भारत के निरंतर प्रवाह की रेखाएं देखने को मिलती है। ये पांडुलिपियां हमारी विविधता में एकता की घोषणा पत्र भी है, उद्घोष पत्र भी है। चंडीगढ़ से बड़ी खबर है। सीएम सैनी की सचिवालय में बैठक, अधिकारियों संग सीएम ने की चर्चा। पंचकुला में बैडमिंटन टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। स्थानीय निकाय की हुई विस्तृत चर्चा इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सचिवालय में अहम बैठक में हिस्सा लेकर अधिकारियों को तमाम जरूरी दिशा निर्देश दिए। बैडमिंटन टूर्नामेंट का उद्घाटन भी और इसके साथ इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सचिवालय में बैठक आयोजित कर अधिकारियों को बता दें कि तमाम जरूरी दिशा निर्देश दिए, जहां अधिकारियों के साथ तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। पंचकुला में बैडमिंटन टूर्नामेंट का भी और इसके साथ स्थानीय विकास की और निकाय की विस्तृत चर्चा भी हुई। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में चल रहे स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्थानीय नागरिकों और अधिकारियों के साथ मिलकर सफाई कार्य में भागीदारी की। उन्होंने लोगों से अपील की कि स्वच्छता केवल सरकारी प्रयासों से संभव नहीं है, बल्कि इसमें समाज के प्रत्येक नागरिक की भागीदारी जरूरी है। चंडीगढ़ से बड़ी खबर है, जहां सीएम सैनी का भ्रष्टाचार पर सख्त एक्शन देखने को मिला है। बसई वाटर प्रोजेक्ट में गड़बड़ी का संज्ञान लेते हुए चीफ इंजीनियर को चार्जशीट के आदेश और इसके साथ ही भ्रष्टाचार पर सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति देखने को मिली है, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भ्रष्टाचार पर सख्त एक्शन लेते हुए बता दें कि आदेश जारी और भ्रष्टाचार पर सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई गई है। सीएम सैनी का भ्रष्टाचार पर सख्त एक्शन। बसई वाटर प्रोजेक्ट में गड़बड़ी पर संज्ञान लेते हुए चीफ इंजीनियर को चार्जशीट करने के आदेश जारी किए हैं और इसके साथ ही जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है। सबसे बड़ी खबर है, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सख्त एक्शन लेते हुए भ्रष्टाचार पे बता दें कि इंजीनियर को और इसके साथ ही बता दें कि गड़बड़ी में संज्ञान पर आदेश जारी किया है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज हिसार जयपुर फ्लाइट का डिजिटल माध्यम से शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह फ्लाइट दोनों राज्यों के बीच यात्रा को सुविधाजनक बनाएगी और व्यापार, पर्यटन एवं सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देगी। उन्होंने अधिकारियों को यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। चंडीगढ़ से एक खबर है, जहां सीएम सैनी ने फ्लाइट का उद्घाटन किया और इसके साथ ही उद्घाटन के बाद अब लोगों को सुविधाजनक यात्रा मिलती हुई नजर आएगी और पर्यटन व्यापार में वृद्धि का भी अवसर नया पैदा हुआ है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग के सीए ब्लॉक स्थित सेंट्रल पार्क में कई विकास परियोजनाओं के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुई। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने पार्क और आसपास की अन्य परियोजनाओं का निरीक्षण किया और स्थानीय जनता से संवाद भी किया। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य हर क्षेत्र में विकास को गति देना है ताकि लोगों को बेहतर जीवन सुविधाएं मिल सके। और दिल्ली से एक खबर है, जहां सीएम रेखा गुप्ता ने परियोजना का उद्घाटन किया और इसके साथ ही कार्यक्रम में शिरकत कर परियोजना की सौगात दी है। कई परियोजना की सौगात देते हुए सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि विकास की गति को और भी ज्यादा रफ्तार देगी। अब आपको सीधा ले चलते हैं पंचकुला, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कार्यक्रम में शिरकत कर क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। आज इसका शुभारंभ हो रहा है। 21 तारीख तक ये कार्यक्रम चलने वाला है और पूरे देश से अंडर 15, अंडर 17 के लगभग 2000 बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। सभी बच्चों को मैं बहुत बहुत बधाई और उनके भावी गण को देता हूं। आज इस अवसर पर हमारे जिला के अध्यक्ष अजय मित्तल जी, हमारे बैडमिंटन एसोसिएशन के सचिव हरियाणा प्रदेश अजय सिंघानिया जी, आलोक मित्तल जी आईपीएस, मोहम्मद साइन जी आईएएस, कैलाश चंद मित्तल जी, मेघराज गर्ग जी, अमित जिंदल जी, पारुल जी, डीपी सोनी जी, जितेंद्र महाजन जी और उपस्थित सभी युवा साथी और सभी हमारे युवाओं के साथ जो अभिभावकगण आए हैं, सभी महानुभाव, आप सबका, हमारे जो युवा साथी 13 सितंबर से आज से लेकर के 21 सितंबर तक आप लोग यहाँ रहने वाले हैं और इस बैडमिंटन गेम्स के अंदर आप हिस्सा लेने वाले हैं। आप सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। मुझे ये खुशी है कि आज देश में देश की सबसे बड़ी, सबसे ऊर्जावान युवा शक्ति के बीच में आने का मुझे अवसर मिला है। आपसे आज मिलकर के मुझे बहुत ही गौरवान्वित महसूस हो रहा है। मैं आप में भावी भारत की ये तस्वीर हम देख रहे हैं। मैं इस बैडमिंटन टूर्नामेंट के आयोजकों का भी आभारी हूं
जिन्होंने आप सबसे ये मिलने का अवसर हमें प्रदान किया है। मैं इस टूर्नामेंट के आयोजन के लिए बैडमिंटन एसोसिएशन तथा स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी पंचकुला की सराहना करता हूं। जैसा अभी बता भी रहे थे, आदरणीय ज्ञानचंद जी ने कहा कि आज से लगभग 15 वर्ष पहले इसका शुभारंभ हुआ और आज ये अपने नई ऊंचाइयों के ऊपर जा रही है। 15 वर्षों की इस यात्रा में जो हमारी स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी पंचकुला, इसने हजारों बच्चों को एक प्लेटफॉर्म देने का काम किया है। आज यहां पर लघु भारत का नजारा दिखाई दे रहा है और मुझे ये खुशी भी है कि इस टूर्नामेंट में देश के सभी राज्यों से 2000 खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे हैं और मैं हरियाणा के मुख्य सेवक के रूप में आप सबका यहां स्वागत भी करता हूं, आप सबका अभिनंदन भी करता हूं। सभी खिलाड़ियों को इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूं और साथ ही ये कामना भी करता हूं कि आप निरंतर बड़ी उपलब्धियों को प्राप्त करें। आपकी इतनी बड़ी उपस्थिति। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां आरएमएल आईएमएस स्थापना समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। संस्थाओं की उपलब्धियों पर डालेंगे प्रकाश। समारोह में सीएम योगी करेंगे संबोधन और इसके साथ ही तमाम तैयारी की गई है। राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान अपने स्थापना दिवस समारोह का आयोजन करेगा, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। ये कार्यक्रम सुबह 11 बजे शुरू होगा। इस अवसर पर विभिन्न सांस्कृतिक और शैक्षणिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संस्थान की उपलब्धियों और स्वास्थ्य सेवा में क्षेत्र में विकास पर प्रकाश डालेंगे। हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भेंट की। इस दौरान सांसद ने अपने संसदीय क्षेत्र से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों और विकास कार्यों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर संभव सहयोग का आश्वासन देते हुए आवश्यक कदम उठाने का भरोसा दिलाया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय सहकारिता एवं नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहल के साथ सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक की। बैठक में सहकारिता क्षेत्र के विभिन्न योजनाओं की प्रगति और भविष्य की रणनीतियों पर विस्तृत चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सहकारिता योजनाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से किसानों और आम जनता तक पहुंचे। उन्होंने पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर देते हुए कहा कि सहकारिता विभाग ग्रामीण विकास की रीढ़ है, इसलिए इसकी कार्यप्रणाली को और भी अधिक सशक्त बनाया जाए। बैठक में विभागीय अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही और ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।